Hello children, how are you all? I hope you all are doing good. So children, today in this class we are going to learn about measurement. So let's start with that. Measurement of length. Length is the distance from one end to an object to the other hand. Earlier people used different parts of their body to measure length. Handspan, cubit and pace can be used for measuring the lengths of objects. Okay बेटा, so पहले क्या होता था, लोग अपने हैंड स्पैन को यूज़ करते थे, क्यूबिट्स को यूज़ करते थे एंड पेस को यूज़ करते थे किसी भी ऑब्जेक्ट्स का मेजर लेने के लिए. सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड पेस. ओके, दीज आर नॉन स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स. दैट मीन्स इसका कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है. Measure the following in handspan, cubit and pace doing with your friend. Okay. Now the length of one side of math textbook in handspan, the length of the table in cubit, the length of the classroom in pace. अब आपने क्या करना है, इन सब की आपने लेंथ लेनी है. ओके, आपके फ्रेंड ने लेनी है. The measurements taken by you and your friend would be differ. जो आपने मेजरमेंट लिया विद द हेल्प ऑफ क्यूबिट, पेस एंड हैंडस्पैन में, और जो दूसरा आपके फ्रेंड ने लिया, वट यू नो डू यू ऑब्जर्व, दे बोथ आर डिफरेंट. वो दोनों अलग अलग मेजरमेंट है. दिस इज बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लेंथ्स फॉर हैंडस्पैन, क्यूबिट एंड पेस, क्योंकि हर लोगों के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं. दैट इज़ वाई वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इसीलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ी. यूनिट्स ऑफ लेंथ. ओके, नाउ लेट्स सी. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा जो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर में कहलाता है. 1 meter is divided into 100 smaller units called centimeter. Okay beta, so remember this term, this is very important. The units meter and centimeter are used to measure the short distances and the length of different objects. जो मीटर और सेंटीमीटर होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. मीटर इज रिटन एज m and centimeter is written as cm. Okay, this is how we denote, like m for meter and cm for centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. Yes, you're right. The unit centimeter is used to measure the lengths and weights of smaller object. Okay, और जो सेंटीमीटर होता है हमारा क्या होता है, किसी भी लेंथ और विड्थ को लाइक स्मॉल अमाउंट होता है तब हम उसको यूज़ करते हैं. 1 सेंटीमीटर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मिलीमीटर्स, और जो 1 सेंटीमीटर होता है हम उसको और भी डिवाइड कर सकते हैं मिलीलीटर में. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिलीमीटर इज लाइक mm. ओके, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm or 10 millimeter. The unit meter is used to measure the length and the width of bigger objects and shorter distances. Given below are some tools used for measuring length. ये कुछ tools दे रखे हैं measure करने के लिए. Like ये क्या है बच्चों, measuring tape, this is meter rod and this is ruler. Okay. Another unit for measuring length is kilometer. Okay बेटा. So the short form of kilometer is km. 1 kilometer is equal to 1000 meter. Longer distances like the distance between your school and home are measured in kilometer. जब हमारे बड़े बड़े distances होते हैं उसको हमें measure करने के लिए किलोमीटर की ज़रूरत होती है. Okay, I hope you understood the concept of centimeter, meter, millimeter and kilometer. Okay, so now measurement of length by using ruler. Measure the zero mark of the centimeter side of the ruler at one end of the pencil you want to measure and see the reading on the ruler at the other end. Okay beta, like this. The reading at the other end gives the length of pencil. So this is a scale और pencil कहाँ पर है हमारी
स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे शुरू होती है लाइक 0 सेंटीमीटर पर, और ये कहाँ पर है हमारी 6 में एंड होती है. हेयर इन द गिवन पिक्चर द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 6 मीटर या सेंटीमीटर. तो ये जो हमारी पेंसिल है इसकी लेंथ आती है बच्चों हमारी 6 सेंटीमीटर. फिलिंग द ब्लैंक्स with centimeter or meter. Okay, so let's start. The length of a playground is 100. हमारा जो प्लेग्राउंड है उसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में आएगी कि मीटर में आएगी. Of course it is on meter. तो we just write it m. The length of a nail cutter is 5 watts. जो नेल कटर की लेंथ है वो क्या होगी हमारी, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी यस सेंटीमीटर में. ओके, सो दिस इज हाउ वी जस्ट राइट द करेक्ट यूनिट ऑफ दैट वन. ओके, जो स्मॉलर आएगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा cm. द बिगर यूनिट यू हैव टू जस्ट राइट इट मीटर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ नेक्स्ट, एडिशन ऑफ लेंथ्स. टू add 2 or more lengths in m or cm, we simplify, add the numbers and put down the units. Okay, just like this. Number is given, you have to start with ones place like this. Okay, then do tens place, then do thousand place. So this is how we just add the additions of length. If the lengths are in combined units, we arrange them in 2 columns of meter and centimeter and then add. अगर तो हमारा वो यूनिट बड़ा होता है तो हम इसे 2 कॉलम्स में डिवाइड करना होता है. लाइक वन इज हमारा सेंटीमीटर और दूसरा हमारा क्या होता है मीटर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ नेक्स्ट, एट 35 meter and 76 centimeter and 7 meter and 15 centimeter. इस एग्जाम्पल पे हमें 2 यूनिट दे रखी है. सो सबसे पहले दे रखी है मीटर एंड सेंटीमीटर. सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट ऐड द सेंटीमीटर like this. Then you have to go to meter like that. Okay, hence the sum is 42 meter and 91 centimeter. तो इन दोनों का सम हुआ बच्चों like this. Okay, I hope you understood the concept of addition. Now add the following. Here it is given 86 meter plus 28 meter. So let's start. So 6 और 8 कितने होते हैं बच्चों? We know that 6 और 8 होते हैं हमारे 14. So 14 का 4, carry 1, 8 और 2 10 and 1 11. Yes, this is very easy. Similarly हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर, क्योंकि मीटर हमारा यूनिट आ जाएगा मीटर में. सो नाउ नेक्स्ट वन इज 7 और 3 10, 10 का 0, कैरी 1, 9 और 1 10 एंड 5 15 क्या मीटर. ओके, सो दिस इज हाउ वी जस्ट ऐड मीटर विथ मीटर. ओके, सो दीज आर द अदर एग्जाम्पल, यू हैव टू फिल इट योर ओन बेटा. ओके, सो नाउ मूव ऑन, सबट्रैक्शंस ऑफ लेंथ्स. To subtract given lengths, we simply subtract the numbers and put down the units just like this. Okay, हमने क्या करा, 81 में से 63 को माइनस करना है. Start from ones place, then tens place. Okay, so these are the example. If the given lengths are in combined units, we arrange them in 2 columns of meter and centimeter and then subtract. Okay, तो अगर हमारा मीटर और सेंटीमीटर में 2 तरीके से होगा तो हमें इस तरीके से करना है. सो सब्सट्रैक्ट 37 मीटर 54 सेंटीमीटर फ्रॉम 61 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर. तो हमें जस्ट स्टार्ट करना है सेंटीमीटर से, देन हम जाएंगे कहाँ पर, मीटर में. सो हैंस द डिफरेंट इज 24 मीटर and 26 centimeter. So this is how we just do the subtractions of lengths. I hope you understood. So now next है subtract the following. So here it is given 52. So write it 52 and 25. So now start. You just write it m.
So now you can't subtract 5 from 2, then 2 will take 1 borrow from 5, then it become 12 and it remain 4. So now you have to subtract 12 from 5. So 12 में से 5 गया बच्चों, कितने होते हैं हमारे 7, and 4 में से 2 गया 2. So answer is 27 meter. Okay, so this is the concept of subtractions, meter to meter. Okay, so this is very easy. These are the other examples of that one. You have to do practice yourself. Okay beta. So now next is word problems. Solve the following word problems. A piece of cloth measures 44 meter 40 centimeter. A piece measuring 19 meter 25 centimeter is cut from it. ठीक है, उसमें से वो कट हो गया है. What length of the cloth is left? तो कितना बचा? So let's start with that one. So सबसे पहले हमारा total length कितनी है? 44 meter and 40 centimeter. So write it like this. 44 meter and 40 centimeter. Okay, and next is 19 meter and कितना? 25 centimeter. So now subtract it very nicely. Okay, so सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लिखेंगे, 0 में से 5 नहीं जा सकता, then it become 10, it remain 3. तो 10 में से 5 गया बच्चों 5 and 3 में से 2 गया 1, so 15 सेंटीमीटर. एंड 4 में से 9 नहीं जा सकता, 4 एक हमें बोरी लेना पड़ेगा, इट बिकम्स 14 एंड इट रिमेन 3. सो 9 को 14 तक पढ़ने के लिए हम करेंगे 9 के बाद 10, 11, 12, 13 एंड 14. सो राइट इट 5 ओवर हेयर एंड 3 में से 1 गया 2. सो वी कैन से दैट देयर इज 25 meter and 15 centimeter cloth is left. Okay, so this is very easy. These are the other example of that one beta. Now you have to do it by your own. Okay, so now next, measurement of mass. Mass मतलब होता है weight. The quantity of matter in a body is called mass. Okay, the mass of substances like a sugar, rice, vegetables etc. are measured in kilogram or gram. ये सारी चीज़ें हमारी या तो kilograms में होगी या फिर grams में होगी. The weight of an object is the measure of its heaviness. वो कितना heavy है इस पे depend करता है. That is how heavy or light the object is. We weight any object with the weighting balance. हम इसके थ्रू ही तो हम क्या करेंगे, किसी चीज को वेट करेंगे. ओके, सो नाउ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास. द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग मास इज किलोग्राम. ओके बेटा, लाइक दिस. वी यूज ग्राम फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट्स एंड किलोग्राम फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट्स. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्राम इज जी. ग्राम एंड किलोग्राम इज kg. ओके, तो ये हमारे इसके शॉर्ट फॉर्म्स हो गई. ओके, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो जस्ट रिमेंबर दिस टर्म. वी जनरली यूज द फॉलोइंग वेट्स इन डेली लाइफ. हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, लाइक 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम का भी होता है वेट, 1 kg का, 2 kg का भी देखा है, 5 kg का भी एंड 10 kg का भी. So these are the weight. Okay, so now move on. Choose the correct units of weight and write them in the given circle. Okay, now these are the objects. Okay, you have to tell that whether it is on a gram or whether it is kg. So ball. So ball का weight कितना होगा? Obviously gram, क्योंकि इतनी भारी थोड़ी ना होगी कि उससे खेला ही नहीं जाए. तो बॉल का weight होगा बच्चों हमारा ग्राम. फोन कितना भारी होगा हमारा? केजी के बराबर तो नहीं हो सकता. सो फोन इज काउंटेड एज ग्राम. एंड फ्रूट्स, यस, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, देन फ्रूट्स कुड बी इन किलोग्राम. ओके, सो राइट इट केजी. ओके बेटा, सो दिस इज वेरी इजी. डू द अदर वन योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वेट्स. वेट्स का एडिशन कैसे करते हैं? To add 2 or more weights in gram and kg,
we simply add the numbers and put down the units. Okay, just like this. kg को kg से करना है, उसके बाद ग्राम को ग्राम से करना है. ओके, तो ये kg का हो गया, ये भी kg की वैल्यू होगी और ये ग्राम की वैल्यू हो गई. सो दिस इज सिंपल एडिशन. ओके बेटा, जस्ट डू प्रैक्टिस. ओके, सो नाउ इफ द वेट्स आर इन कंबाइंड यूनिट्स, वो तो अभी हमारी एक ही यूनिट्स में थी, अगर इस समय कंबाइन में कर दी जाए, then we arrange them in 2 columns of kilogram and gram, then add. तो हमें पहले उसको अरेंज करना होगा. ओके, सो add 7 kg 486 gram and 20 kg 354 gram like this. ग्राम से ग्राम को स्टार्ट करना है, फिर kg से kg को ऐड करना है. Hence the sum is 33 kg 840 gram. Yes, now add the following. So 76 kg and 19 kg. So we have to start with ones place. So 9 and 6 होते हैं हमारे बच्चों, कितने होते हैं 15. So 15 का 5, carry 1, then 7, 8 and 9. Okay, so write it 9 over here. एंड ये kg है तो kg का हम यहाँ पर kg ही लिख देंगे. ओके, सो दिस इज हाउ वी जस्ट ऐड द नंबर. इफ इट इज इन अ kg तो ऐड विथ kg टू kg. इफ इट इज इन अ ग्राम फॉर्म तो आपको क्या करना है, ग्राम से ग्राम को ऐड करना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वन. सो डू प्रैक्टिस. ओके, सो नाउ मूव ऑन. नेक्स्ट वन, subtractions of weights. To subtract the weight, we simplify, subtract the numbers and put down the units. Okay बेटा, 76 kg minus 48 kg. So हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है 1 से प्लेस से एंड फिर टेंस की प्लेस से. So this is example of that one. This is also example. You have to only do practice. If the weights are in combined units, अगर वो combined units में होते हैं, we arrange them in 2 columns like किलोग्राम एंड ग्राम. फिर हमें उनको 2 कॉलम्स में लिखना है लाइक दिस. ओके, एंड देन सब्सट्रैक्ट, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करना है. सब्सट्रैक्ट 153 kg 486 ग्राम फ्रॉम 528 kg एंड 600 ग्राम. हैंस द डिफरेंट इज 375 kg 114 ग्राम. ओके, कैसे किया हमने, पहले ग्राम का कॉलम किया हमने, उसके बाद हमने kg का स्टार्ट करा. सो दिस इज हाउ वी जस्ट डू द सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेट. आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ नेक्स्ट, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग 72 kg एंड 40 kg. सो 2 में से 0 गया, 2 का 2, 7 में से 4 गया 3. सो इट बिकम्स 32 kg. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, 104 kg and 66 kg. Okay, so let's start with that. 104 and 66 kg है तो आप यहाँ पर kg, you can write it kg like this. Okay, kg. So 4 में से 6 को आप नहीं माइनस कर सकते हो, 4 एक बोरो लेगा, 0 के पास भी कुछ नहीं है, 0 100 की प्लेस से बोरो लेगा, then it remain 0, it become now 10. अब इसके पास 10 है, नाउ ही कैन जस्ट गिव द 1. सो अब 10 ने अपना एक 1 दे दिया इसको, तो ये रह गया 9. और बच्चों ये कितना बन गया 14. यस, नाउ ही कैन गिव कट 6 फ्रॉम 14. सो 14 में से 6 गया 8. ओके, नाउ इट इज 9. सो 9 में से 6 गया बच्चों 3. So now we can say that 38 kg is the answer of that particular one. So this is how we just do the subtraction sum beta. So these are the other example of that one. You have to practice it. Okay. So now what problems? Solve the following word problems. Ashok weighted 86 kg 250 gram. Okay. अशोक का वेट है 86 kg 250 ग्राम. ही रिड्यूस्ड हिज वेट, उसने अपना वेट रिड्यूस किया है, एंड लॉस्ट 7 kg 585 ग्राम. हाउ मच डज ही वेट नाउ? अब उसका वेट कितना हो गया? सो लेट्स सी. सो राइट इट 86 लाइक दिस, 86 kg
Okay beta, and 250 gram. So write it 250 gram like this. और उसने कितना वेट लॉस किया है? 7 kg and 585 क्या? ग्राम. So this is simply subtraction sum. So let's start with that. हम इसको क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ग्राम का ग्राम हो जाएगा. But we know that we can't subtract 585 from 250. 250 में से हम 585 तो सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. तो we just take 1 kg from 86. So 86 में से 1 kg हम ग्राम को दे देंगे. So now it remain, यहाँ पर कितना रह जाएगा? 85. So write it 85. ये तो हमारा बन गया 85. अब ये कितना हो गया? 250 plus 1000 gram, it becomes now 1250. So we just write it 1250. Okay. अब हमारी जो नई वैल्यू है हमारी क्या आ गई? 1250. Okay. Now you can just subtract this. So 0 में से 5 नहीं जा सकता. 0 ने एक बोरो ले लिया. ये बन गया बच्चों 10. और ये कितना रह गया बच्चों? अब ये रह गया 4. ओके. सो 10 में से 5 गए 5. ओके. अब 4 में से आप 8 को माइनस तो नहीं कर सकते हो. सो 4 नाउ दिस टाइम टेक 1 बोरो फ्रॉम 2. ओके. तो अब 4 ने इसे लिया तो ये जो हमारा 2 था बच्चों ये कितना बन गया? 1. और ये कितना हो गया हमारा? 11. सो राइट इट 11 हेयर. ओके. अब ये हमारा 14 बन गया. सो 14 में से अगर आप 8 माइनस करोगे देन यू विल गेट 6 ओवर हेयर. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड. अब आपने 1 में से 5 को माइनस करना है बट यू कांट सब्सट्रैक्ट. सो आपने क्या करना है? एक आप यहाँ से बोरो ले लोगे तो ये कितना बन गया? 11. और 11 में से 5 गया? यस 6. सो 665 ग्राम. अब हमारी बारी आती है केजी की. 5 में से आप 7 को माइनस नहीं कर सकते हो. 5 ने एक कैरी लिया, सॉरी बोरो लिया तो इट बिकम्स 15 एंड इट रिमेन 7. सो 15 में से 7 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट 8. ओके बेटा. और 7 में से अब कुछ माइनस नहीं करना है तो 7 का 7 ही रहेगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट वन, लाइक 78 kg and 665 gram. Okay, so you can say that he lost 78 kg and 665 gram. Now he has weight. अब इसका इतना weight हो गया. Okay, so this is the answer of that particular one beta. Okay, so these are the other example of that one. You have to fill it your own beta. Okay, so now next is measurement of capacity. Okay, let's start with that. The quantity of liquid like petrol, kerosene, water, milk, etc. that a container can hold is called the capacity of a container. Okay? एक कंटेनर में कितना पेट्रोल, कैरोसिन, वाटर या कुछ भी लिक्विड चीज आती है वो हमारा कहलाता है उस कंटेनर की कैपेसिटी. The vessels which are larger in size can hold more liquid as compared to the vessels which are smaller in size. जो ज़्यादा बड़ा होगा उसमें ज़्यादा लिक्विड आएगा, जो कम होगा उसमें कम आएगा. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी. ओके, सो लेट्स रीड. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हमारी कहलाती है बच्चों लीटर. ओके, वी राइट L फॉर लीटर. और लीटर को हम कैसे दिखाते हैं? L करके दिखाते हैं. मिलीलीटर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉलर अमाउंट. वी राइट ml. और जो हमारा स्मॉलर होता है अमाउंट उसको हम ml करके दिखाते हैं. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. और हम कह सकते हैं 1L इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. बोथ आर सेम टर्म. ओके, वी यूज द फॉलोइंग कंटेनर्स टू मेजर कैपेसिटी. हम इन सब का यूज करते हैं. ये सब हमारे क्या होते हैं? स्टैंडर्ड एक क्या होते हैं? स्टैंडर्ड कैपेसिटी वाले कंटेनर्स होते हैं. ओके, सो दिस इज 50, दिस इज 100 ml, दिस इज 200 ml एंड सो ऑन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ नेक्स्ट, टिक द ऑब्जेक्ट्स शोइंग ग्रेटर कैपेसिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से उसमें आप टिक करोगे जिसमें ज़्यादा अमाउंट आता है. सो वी कैन सी दैट दिस वन हैज़
more amount. Okay, इसमें ज़्यादा आएगा. इन दोनों में से किस में ज़्यादा अमाउंट आएगा? We can easily say that this container can hold more amount of liquid. Okay, so these are the activity, you have to fill it by your own. Okay beta. Now next one, choose the correct unit of capacity and write it in the given space, whether it is in a liter form, whether it comes in a milliliter. So spoon हमारा किस में आएगा? स्पून में हमारा आएगा ml. So write it ml. बकेट में कितना पानी आएगा? बकेट में हमारा आएगा लीटर. एंड ड्रॉप्स, जो हमारी आई ड्रॉप्स होती है, ये हमारा आएगा ml में. ओके, दिस इज हाउ वी हैव टू फिल द बॉक्सेस. ओके, सो नाउ एडिशन ऑफ कैपेसिटीज. To add 2 or more capacities in liter or milliliter, we simply add the numbers and write the units. हमने क्या करना होता है? सिंपल लीटर टू लीटर लिखेंगे और उसको सिंपली ऐड कर देंगे लाइक दिस. वंस प्लेस देन टेंस प्लेस. सिमिलरली पहले वंस की प्लेस, देन टेंस की प्लेस, देन 100 की प्लेस. ओके, इफ द गिवन कैपेसिटीज आर इन कंबाइंड यूनिट, अगर ये कंबाइंड यूनिट में होती है, वी अरेंज दैम इन 2 कॉलम्स ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर एंड देन ऐड. ओके, ऐड 29 लीटर 474 milliliter and 16 लीटर 257 milliliter. सो हमने कैसे अरेंज करना है? पहले मिलीलीटर में करना है, फिर लीटर में करना है. तो सबसे पहले आप ये वंस टेंस प्लेस की वैल्यू को ऐड करोगे, देन आप लीटर की प्लेस की वैल्यू को ऐड करोगे. ओके, सो हेंस द सम इज 45 लीटर एंड 731 milliliter. Okay beta, so this is we have to do the additions of capacities. I hope you understood. So now next, add the following. First one is given 75 liter and second one is given 17 liter. Okay, so 7 and 5 कितने होते हैं? 7 के बाद 8, 9, 10, 11 and 12. So write it 12 का 2, carry 1, 7, 8 or 9. So write it 9 over here. But 92 what? 92 liter. Okay. Simply move on next one. If you have add to 8 plus 6. So 8 plus 6 कितने होते हैं? 14. So 14 का 4. Carry 1. 6 और 2 8 और 8 में 1 ऐड करा 10. So 10 क्या? Liter. Okay beta, so these are the other example of that one. You have to do practice yourself. Okay, so now move on next one, subtractions of capacities. अब किसी capacities को कैसे subtract करते हैं? To subtract given capacities, we simply subtract the numbers and put down the unit like this. 1 से 1 को करना है आपने subtract, 10 की प्लेस को 10 की प्लेस करना है और लीटर का लीटर लिख दोगे. सिमिलरली मिलीलीटर का मिलीलीटर, स्टार्ट फ्रॉम वंस, देन टेंस एंड देन हंड्रेड्स. इफ द गिवन कैपेसिटीज इन कंबाइंड यूनिट्स, वी अरेंज देम इन 2 कॉलम्स ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर एंड देन सब्सट्रैक्ट. ओके बेटा, सो सब्सट्रैक्ट 46 लीटर 395 milliliter from 80 liter and 950 milliliter. Okay, so you have to start from milliliter then liter. Okay, hence the difference is 34 liter 555 milliliter. Okay, I hope you understood the concept of subtractions of capacities. Okay, so now move on next one, subtract the following. Now you have 63 liter and you have to subtract 25 from it. Okay, so 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते. 3 अगर 1 बोरो लेगा then it becomes 13. So 63 and 25 liter and liter. So 3 में से 5 नहीं जा सकता. 3 ने एक बोरो लिया, it becomes 13. It remain 5. So 5 के बाद हम पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. So how many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So write it 8 over here like this. And 5 में से 2 गया 3. So we can say that 38 liter. Okay. So this is very easy. Just write it very nicely beta.
So these are the other example of subtractions. You have to fill it your own beta. Okay. So now move on word problems. Solve the following word problems. The diesel tank of a car had 33 liter 600 मिलीलीटर ऑफ डीजल. एक डीजल में एक कार का जो डीजल है उसमें जो टैंक होता है उसमें 33 लीटर एंड 600 मिलीलीटर डीजल आता है. इट कंज्यूम्ड 24 लीटर एंड 436 मिलीलीटर इन अ ट्रिप. और उसने इतना तो कंज्यूम कर लिया है. हाउ मच डीजल वॉज लेफ्ट इन द टैंक आफ्टर द ट्रिप. अब कितना उसके पास बैलेंस बचता है किसका? डीजल का. सो लेट्स सी. राइट इट. 33 liter and 600 milliliter like this, and 24 liter is consumed and 436 milliliter is consumed. So this is simply subtraction sum. So start. 0 में से 6 नहीं जा सकता. Now 0 ने एक बोरो लिया टेंस की प्लेस से, टेंस ने 100 की प्लेस से लिया, तो इट रिमेन 5. इट बिकम 10. अब जब ये 10 बन गया तो उसने वंस की प्लेस को दिया, तो नाउ अब 9 एंड दिस बिकम 10. सो नाउ यू कैन सब्सट्रैक्ट. ओके. सो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया, कितने गए बच्चों? 6, एंड 5 में से 4 गया 1. ओके. दिस इज ml एंड दिस इज लीटर. 3 में से 4 आप नहीं माइनस कर सकते हो. Then 3 will take 1 borrow from 3, it becomes 13 and it remains 2. Then 13 में से 4 माइनस करोगे तो आपका आता है 9 and 2 में से 2 गया is 0. So we can say that 9 liter and 164 milliliter diesel is still left. Okay? कितना बचा उसके पास? इतना उसके पास लीटर बचा. तो हम लिखेंगे 9 liter 164 milliliter. Okay. So these are the story sums, or you can say that word problems. You have to do practice yourselves beta. Okay. So this is very easy chapter. I hope you understood well. So just keep doing practice and do rest of other question answers yourself.